A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to discuss about the topic that is mean, right? So in arithmetic mean, so let us start with the concept that is what is arithmetic mean. Okay, so firstly we will discuss about what is arithmetic mean. So arithmetic mean is simply just a measures of the central tendency. So it is one of the measure of the central tendency. So it is defined as the sum of the values of all the observation divided by the number of observation and is usually denoted by the x bar. ठीक है. So arithmetic mean को हम लोग कैसे denote करते हैं? ठीक है. सो इसको अगर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो इट इज़ दी वैल्यूज़ ऑफ दी ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जो सारी ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज टाइप्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन, कि जो ये अर्थमेटिक मीन है उसके टाइप्स क्या है? Types of arithmetic arithmetic mean. So arithmetic mean is of two types. ठीक है. So उसके two types क्या है? That is simple arithmetic mean, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean, right? Weighted arithmetic mean, simple arithmetic mean and the weighted arithmetic mean, right? So firstly we will discuss what is simple arithmetic mean. ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक मीन को देखते हैं. सो इन सिंपल अर्थमेटिक मीन all the observation or the items in a series given equal importance. ठीक है. So as a sample उनको सेलेक्ट करने का क्या होता है? सबके पास equal importance होता है. That means कि किसी एक आइटम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, आइटम्स हैं, वो सारे क्या है? उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है. ठीक है. सो इन द वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है? वेटेड आर असाइन टू दी वेरियस आइटम्स. वेट किसको असाइन किया जाता है? वेरियस आइटम्स को असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या है कि वेट्स को असाइन किया जाता है. राइट. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल अर्थमेटिक मीन, कि अभी हम लोग देखते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. So types of it's a calculation of the simple arithmetic mean. Calculation of simple arithmetic mean. Okay. So when we talk about the calculation of the simple arithmetic mean, so it will be divided into three series. Okay, three series में क्या होगा? ये डिवाइड होगा. सबसे पहला होगा इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज. नेक्स्ट विल बी डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज. And the next one will be continuous series. Continuous series. So in every series there are three methods will be there. Sorry. ठीक है. हर एक सीरीज में क्या होंगे? थ्री मेथड्स होंगे. तो इसमें सबसे पहला मेथड होगा डायरेक्ट मेथड. Next will be shortcut method.
and the next will be step deviation method. Step deviation method. Right? Now in the discrete series, so in the discrete series also there are again that three methods are there. First one is direct method. Second will be shortcut method, and the shortcut method is also known as the assumed mean method. Shortcut or assumed mean. Now the next one is, that is step deviation method. Step deviation method. Okay. So in continuous series also there are again the that three methods. So first one will be direct method. Second one is shortcut method. And the third will be step deviation method. Okay. So कैलकुलेशन अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन का करना है तो उसके थ्री सीरीज हो गए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और दी कंटिन्यूअस सीरीज, राइट. सो इन दी individual series there are three methods while calculating the simple arithmetic mean. So the first one is, that is direct method, shortcut method and the step deviation method, right. In the discrete series there are also the three methods: direct method, shortcut or the assumed mean method and the step deviation method. Now in the continuous series, also there are the three method: direct method, shortcut method and the step deviation method, right. So let us discuss all these one by one हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. So let us start with the individual series. Individual series. Okay. So in the individual series, in these series there are no frequencies. Okay. So in these series there are no frequencies. There are no frequencies. Okay. Item or the values of the variable are listed singly. Okay. Items or the values are listed singly. Okay. So in other words, there is no class of the item and also no frequency. यहाँ पे क्या होगा? There is no class and no frequency. ओके. तो यहाँ पे कोई भी क्लास भी नहीं होगा, मतलब क्लास इंटरवल भी नहीं होगा, कोई रेंज भी नहीं होगा और साथ ही साथ इसमें कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी. ठीक है. सो देयर आर थ्री मेथड. इसके थ्री मेथड्स होते हैं टू नो दी बेसिकली दी टू मेथड थ्री मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट. सो इंडिविजुअल सीरीज क्या हो गया? सॉरी. सो इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पे क्या हो गया? इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? इन दी सीरीज देयर आर नो फ्रीक्वेंसी.
यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी। क्या होगी, आइटम और दी वैल्यूज, जो भी आइटम या वैल्यूज हैं वो लिस्टेड होंगे, सिंगली होंगे। मतलब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, या एक एग्जांपल लेते हैं, देयर इज नो क्लास एंड नो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कोई भी क्लास, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन द डायरेक्ट मेथड, सो डायरेक्ट मेथड में जैसे आपके आइटम्स दिए हैं 2, 4, 6, 8, 12, 18, 20, राइट। तो ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ले लेते हैं 22। इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 18 + 20 + 22 डिवाइड किसे करेंगे, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं इनको वैल्यू डिवाइडेड बाय 8, जो भी आंसर आ जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट विल बी द फ्रॉम दी डायरेक्ट मेथड। ओके, तो यही आपका इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं दी रहती है और हम लोग क्वेश्चंस को with the help of the formula we are going to solve. Okay, so now moving to the next method, that is discrete series. So in these series, there are frequencies, there are frequencies corresponding to different values of the variable, corresponding to different values of the variable. ओके, सो इसमें क्या होगा कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज भी वेरिएबल्स की दे रखी होंगी। सो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर अरेंज्ड इन ग्रुप विच आर एग्जैक्टली मेजरेबल, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी वेरिएबल की वो क्या होंगी, ग्रुप में अरेंज्ड होंगी, जिसको हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होंगे इसके। पहला हो गया डायरेक्ट मेथड, सेकेंड हो गया शॉर्टकट, और अज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। एंड द थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और अज्यूम मीन मेथड और दी स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड। हम लोग डायरेक्ट मेथड के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Direct method. So in this method, frequency against each observation is multiplied by the value of the observation. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी ऑब्जर्वेशन के सामने वो मल्टीप्लाई होगी वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो द वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड आर सम्ड अप, जो भी वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी उनको सम अप करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। सो आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन
समेशन एफ। क्योंकि शॉर्टकट मेथड और दी अज्यूम मीन मेथड में यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी होंगी, जो भी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज भी होंगी। तो क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी वैल्यूज ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी आएगा उसको सम कर देंगे, देन डिवाइडेड बाई दी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है उनको सम अप करेंगे, हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो लेट अस टेक दी वन एग्जांपल रिलेटेड टू एच। एक एग्जांपल लेते हैं। Marks, number of students. Marks, number of students. Marks is 10, 20, 30, 40, 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया है, 15, 10, 40, 20, 15. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एफ एक्स, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समेशन एफ। एफ एक्स मतलब ये आपका x है एंड दिस इज f, मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 150, 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 40 4 3 जा 1200, 40 इंटू 20 4 2 जा 8 800, देन 15 इंटू 50, तो 15 5 जा 75, यहाँ पे समेशन एफ एक्स, समेशन एफ यहाँ पे करेंगे 4 5 6 7 8 9 10, सो समेशन एफ आ गया आपका यहाँ पे 10, ठीक है। अब यहाँ पे करना है समेशन एफ एक्स, इसको सम करेंगे 0 1 12 20 27 28 29 30 एंड देन 31, समेशन एफ एक्स आ गया 3100, ठीक है। अब व्हाट वी विल डू, सो वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड पुट इट ऑल द वैल्यूज, सो समेशन fx upon summation f, okay, okay. समेशन fx क्या आया है, दैट इज 31, समेशन f कितना है 100, so we get the value of the arithmetic mean 31. So this is the shortcut method, direct method, ठीक है। शॉर्टकट में ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो फिर से देखते हैं इसमें किया क्या गया, इसमें किया ये गया कि हम लोग के पास का फॉर्मूला था एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो आपके पास एक्स दे रखेगा और एफ दे रखेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि शॉर्टकट मेथड में फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। सो आपका क्या हो गया, एफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे 30 इंटू 40 40 इंटू 20
जो भी आएगा देन इसको सम अप कर लेंगे और समीशन एफ निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू। तो समीशन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सो ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक 3100, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 100। सो अर्थमेटिक मीन निकल गया 31। ओके, सो now moving to the next method, that is shortcut method. Shortcut method. So shortcut method क्या है? We can use this method to calculate the arithmetic mean in order to simplify arithmetic कैलकुलेशन। ठीक है, इस मेथड को हम लोग यूज़ कब करते हैं? अर्थमेटिक मीन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जब भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को हमें करना होता है। सो डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन आर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो जो भी डेविएशन आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फ्रीक्वेंसी टू गेट द एफ डी। ठीक है, सो सिम्बॉलिकली वी विल राइट डाउन दी symbolically it will be a plus summation fd upon summation f। ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला। यही क्या है इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला इसका? ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। कैसे करेंगे इसको? अब यहाँ पे आप देखो क्या है, दिस इज दी अर्थमेटिक मीन, A is the assumed mean, F is the frequency, D is the deviation। अब हमें यहाँ पे अगर FD कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? जो भी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं और डेविएशन जो दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको सम अप करके समीशन FD कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को देखते हैं। So before doing some question related to it, so let us first of all let us recapitulate all the formula what we have already discussed, because अभी सारे फार्मूला एक साथ हो जाएंगे तो इट बिकम्स मेस्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होने लगेगी आपको। तो सबसे पहले आपको याद होगा डायरेक्ट मेथड पढ़ा था हमने, डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स अपॉन एन। फिर क्या था? शॉर्टकट था, शॉर्टकट का था ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, है ना? ठीक है। फिर आपका था स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन का था दैट इज a प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी। फिर शॉर्टकट मेथड, उसका डायरेक्ट का सॉरी इट विल बी नॉट इट विल बी डिस्क्रीट सीरीज ना, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया
समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, राइट। नेक्स्ट क्या था, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, ओके, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। सो ये ही शॉर्टकट मेथड है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करना